کرتے, پتہ نہیں میری ماں کو کون سا بند کرنا پسند ہے, کون سا کھلا پسند. رات بھر میں یہی کرتا تھا. فجر کی اذان کی آواز آئی, میری ماں کی آنکھ کھلی, مجھے قدموں کے نیچے پایا, بولا بیٹا تو بیٹھا ہوا ہے؟ میں نے کہا جی ماں. بولے اذان ہو گئی فجر کی, تو نماز پڑھ لے. میں نے کہا جی ماں. تو ماں نے کہا یہ بتا رات بھر یہ کھٹ کھٹ کی آواز کیسے آئی ہے, یہ کھٹ کھٹ کی آواز کیسے آئی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں میری ماں آپ نے کہا تھا سونے سے پہلے ایک پلہ بند کر دے ایک کھول دے. تو میں پریشان ہو گیا کہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ دائیں کو بند کر کے بائیں کو کھول دے. میں اس کو بند کرتا اس کو کھولتا, پھر آپ کی بات یاد آتی, پتہ نہیں آپ کا اشارہ کس طرف, پھر میں اسے کھولتا اسے بند کرتا. رات بھر میں اس کو بند کرتا اس کو کھولتا اس کو بند کرتا, یہی کرتا رہا. ماں نے کہا میرے بیٹے تو نے یہ کہاں سیکھا؟ مولوی صاحب نے کہا میری ماں میں نے 9 سال تک مدرسے میں یہی سیکھا. میں نے 9 سال تک, ماں نے کہا مسکرا کر کے آنکھ میں آنسو لا کر اپنے پھٹے ہوئے دوپٹے کو اٹھایا, کہا میرے مولا تو نے دیکھا میرے بچے کا کارنامہ, یہ ہے تیری توفیق سے. 9 سال تک اگر اس نے جو سیکھا وہ میرے قدم تک پہنچا, اس پر کرم فرما دے میرے مولا. میری ماں نے کہا دیکھ میرے چہرے کی طرف. وہ کہتا ہے ہزاروں کلومیٹر دور میرے گھر سے مکہ شریف تھا, لیکن جب میری ماں نے کہا دیکھ میرے چہرے کی طرف, جب میں نے ماں کے چہرے کی طرف دیکھا تو ماں کا چہرہ غائب تھا, پیچھے دیوار غائب تھی, پڑوسی کے مکان غائب تھے, شہر کی آبادی غائب تھی. اور مجھے جب ماں کے چہرے کی طرف دیکھنے کا موقع ملا, مجھے ماں تو نظر نہیں آئی لیکن سامنے خانہ کعبہ نظر آیا, کعبے کا غلاف نظر آ رہا تھا, بہار کعبہ نظر آ رہی تھی, حتیم نظر آیا, مطاف نظر آیا, باب اجابہ نظر آیا, باب کعبہ نظر آیا, مجھے ملتزم نظر آیا, مقام ابراہیم نظر آیا, مجھے وہ عظیم الشان پردانہ شریف نظر آیا, مجھے حتیم کی وادی نظر آئی, صفا مروہ کی پہاڑیں نظر آئیں, اور آواز آئی اے میرے بندے سن, اگر تو نے 9 سال تک مدرسے کی تعلیم سے ماں کے قدم کو چوما ہے تو ماں کی خدمت سے جا, تجھے میں نے اپنا ولی بنا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس میں کتنی محنت کرنی پڑتی ہے, ایک پیر پہ کھڑے ہو کے کیا قرآن پڑھنا پڑتا ہے؟ نہیں, جو بھی چاہتے ہو جائز چیزیں وہ مل جائیں گی اگر ماں کو راضی کر لیا. واہ 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 واہ. ماں ناراض ہو جائے تو اسے منا لیا کرو, بہت آسان نسخہ ہے. شاعر نے کہا تھا ماں اگرچہ روٹھی ہے میں اسے منا لوں گا, ماں اگرچہ روٹھی ہے میں اسے منا لوں گا. دیکھنا شعر فہم کتنے لوگ ہیں. ماں اگرچہ روٹھی ہے میں اسے منا لوں گا, موم کے پگھلنے میں دیر کتنی لگتی ہے. زندہ باد زندہ باد. موم کے پگھلنے میں دیر کتنی لگتی ہے. زندہ باد زندہ باد. اور اگر ماں کو راضی نہ کیا, آپ نے اپنے علاقے کی سنسد کو راضی کر لیا بیکار ہے, ودھائک کو راضی کر لیا بیکار ہے, سی ایم کے دسترخوان پر کھانا کھانے کی نوبت آئی, یہ سیلفی یہ تصاویریں کام نہیں آئیں گی, یہ رسیاں بن جائیں گی, آپ کے پیروں کی زنجیر بن جائیں گی. اور ماں راضی ہو گئی تو رب راضی ہو جائے گا. اے ضیا ماں باپ کے سائے کی نہ قدری نہ کر, یہ سایہ کتنا کام کا ہے. اے ضیا ماں باپ کے سائے کی نہ قدری نہ کر, دھوپ کاٹے گی بہت جب یہ شجر گرے. سبحان اللہ سبحان. تب یاد آئے گی. سمجھ رہے, میں راتوں کو جلسے سے واپس جاتا تھا تو 2 ڈھائی 3 بجے کبھی, تو میری ماں دروازے کے قریب سوتی تھی ہال میں, تو میں جگاتا نہیں تھا کبھی کبھی اپنی ماں, اسی تخت پہ کیسے رہوں اندر جاؤں, امی اٹھ جائے گی. آپ یقین کریں میری ماں کو میرے آنے کا احساس ہو جاتا. ٹیبل پر میں کبھی بیٹھ جاتا کبھی لیٹ جاتا, اپنی اٹیچی یا بیگ رکھ, میری ماں کو خبر ہو جاتی. دروازہ کھول کے رات کے 3 بجے 4 بجے باہر, کیوں بیٹا تو آ گیا, کب آیا؟ ارے امی میں دیر میں ہے. بولے بتایا کیوں نہیں؟ نہیں میں نے سوچا کہ تو آرام کر رہی ہے. تو وہ کہتی تھی کہ جب سے تو باہر نکلتا ہے میں آرام کہاں کرتا, میں تو اپنے بیٹے کی خیریت کی تصویر دیکھنا چاہتی ہوں. میں زندہ اسی لیے ہوں کہ اللہ میرے بچوں پہ کرم فرمائے. یہ ماں ماں ہوتی ہے. سرکار محبوب الہی سے کسی نے کہا تھا دہلی میں بارش نہیں ہو رہی, آپ دعا فرما دیں. فرمایا ابھی ہوگی انشاءاللہ, انشاءاللہ ابھی ہوگی. اندر گئے, ایک دھاگا لے کے آئے, اپنے ہاتھوں میں رکھا, کہا اے میرے مولا اس دھاگے کے وسیلے سے بارش ہو جائے. ایسی بارش دلی لبالب, لوگ خوشی میں رقص کرنے لگے. کسی نے پوچھا اے سرکار نظام الدین اولیاء آپ نے کیا اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا, یہ دھاگا کیسا ہے؟ دیکھنا کتنے لوگ ہیں جو ماں کی محبت میں سبحان اللہ کہتے ہیں. سرکار نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں میں نے یہ جو دھاگا اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنا کے پیش کیا, یہ دھاگا میری ماں کے دوپٹے کا دھاگا. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان. ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دیجیے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. زندہ باد زندہ باد. پروردگار عالم ان آوازوں کو سلامت رکھے, آواز دینے والوں کو اور آواز کا سپورٹ کرنے والوں کو سلامت رکھے. میری گزارش ہے, ایک کام میں ہر محفل میں کرنا چاہتا ہوں, اجازت دے تو کیا آپ بتا سکتے ہیں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے جن کی گھر میں مائیں زندہ ہیں,
बिल्कुल बेधड़क उठाया अपने हाथ को। आपको हकीकत में यहाँ होना चाहिए, मुझे वहां होना चाहिए। मैं इसलिए ऊपर हूं कि बात सबसे बड़े की है तो बुलंदी से हो रही है, और कोई बात नहीं है। कभी अच्छा मत समझिएगा, अच्छा वही है जिसका ईमान पर खाता। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चैप्टर क्लोज, समझ रहे हैं आप फिर से अपने हाथों को उठाएं जिनकी माँ जिंदा है, उठाएं आप, मुबारक हो। आप पहले तो कहते ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है ना, दिल से बोले, माँ हया से बोले, बोले ऐ अल्लाह तेरा, फिर से बोले, वादा कीजिए इंशाअल्लाह। मैं आपको हलफ नहीं उठा रहा हूं, मैं आपको कसम नहीं दे रहा हूं, लेकिन वादा कीजिए इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा जब भी अपने घर से बाहर निकला करें अपनी माँ का हाथ चूम के निकला। ऐसा करेंगे इंशाअल्लाह, बोले इंशाअल्लाह, फिर से बोले इंशाअल्लाह। अल्लाह आपके काम को आसान कर देगा इंशाअल्लाह। और अगर माँ का इंतकाल हो गया हो तो माँ की कब्रों पे जाया करो, वो तुम्हारा इंतजार करती है। कम से कम एक हफ्ते में जरूर जाया करो इंशाअल्लाह। ये बातें मैं कई साल से बयान करता हूँ। सूफी सुल्तान मियां का ये कौल, आप फरमाते अगर कब्रिस्तान में 100 मुर्दे हो, अगर कब्रिस्तान में 100 मुर्दे हो तो सूफी साहब फरमाते हैं ये सोच के मत जाओ कि इस कब्रिस्तान में 100 मुर्दे हैं, इसमें मेरी माँ मेरे बाप दफन है। ये सोच के जाओ कि इस कब्रिस्तान में अगर 100 मुर्दे हैं तो यहाँ 100 मरतबे हुजूर तशरीफ ला चुके हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। और अगर हो सके फरमाते सूफी साहब किबला तो 10-20 रुपए की चीनी लेके जाया करो। बुजुर्गों का ये तरीका था, अब दबा दिया गया, समझे भाई, अब दबा दिया गया है, अब दब गया है, इसे उभारो। एक काम का चीनी लेके जाया करो, 2-4 रुपए की पार्ले बिस्किट की लेके जाया करो, नमकीन चीजें सेव वगैरह 5-10 रुपए की ले लिया करो, और चीनी कब्रिस्तान के करीब पेड़ पौधों में डाल दिया करो, बिस्किट भी डाल दिया करो, चिड़िया है कौवे खा डालेंगे, चोटियां चीनी खा डालेंगे। बोले तुम तो चले जाओगे लेकिन जैसे मीठी चीजें चोटियों को मिलेंगी वो भी तुम्हारी माँ के लिए मीठी मीठी दुआ करेंगी। और ये तरीका बुजुर्गों का है, 10-20 रुपए में आपका नुकसान कुछ नहीं होगा, माँ राजी हो जाएगी। जब यही चोटियां असर के बाद दरूद पढ़ेंगी तो हुजूर को पता चलेगा इस दरूद में मिठास क्यों नजर आ रही है, किसकी वजह से नजर आ रही है। समझ रहे हैं आप, ये काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। माँ का एहतराम किया करें इंशाअल्लाह। बोले हुजूर फरमाते मेरी शादी में जो चीफ गेस्ट बनेगा वो मेरी। अब हुजूर की माँ के नाम पर दोनों हाथों उठा के सुभान अल्लाह। जब जाना तो इंशाअल्लाह अम्मी हलीमा की बारगाह में जाना। मालूम मक्की शरीफ में आराम कर रही है, घर इनका कबीले बनो साद में था। मैंने उनके घर में, जिस घर में हुजूर के बचपना गुजरा, मैंने उसकी ज़ियारत की है। रमजान शरीफ के मौके पर मैंने वहाँ अफ्तारी की है। आप यकीन करें, मैं हलफ उठा के बयान कर दूं, वो पूरा घर 1400 साल के बाद जब मैंने अभी देखा ना उसे, घर के पत्थर महक रहे थे। मेरे साथ जो सादात किराम थे वो रोने लगे उन पत्थरों को चूक चूक। अल्लाह पर कब गुजरे हुजूर, खुशबू अभी तक बाकी। जिसके नाम में खुशबू है, जिसके जिक्र में ठंडक है, उसका क़याम जिस घर में होगा उस घर से खुशबू कैसे खत्म होगी। मेरे आका की शादी, अब जब खुतबा पढ़ने का वक्त आया तो हुजूर के ससुर खदीजा, अम्मी खदीजा के अब्बू जनाब खुवैलद ने खुतबा पढ़ाया। जब खुतबा पढ़ा तो निकाह पढ़ाया जनाब अबी तालिब ने। सुभान अल्लाह, हुजूर से बड़ी मोहब्बत फरमाते थे जनाब, बहुत मोहब्बत फरमाते थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुतबा पढ़ाया जनाब अबी तालिब ने, फिर खुद निकाह पढ़ाया जनाब अबी तालिब ने, खुतबा पढ़ा जनाब खुवैलद ने, फिर दोबारा खुतबा पढ़ा जनाब अबी तालिब ने। हुजूर की निकाह में अम्मी खदीजा आ गई। कह दो सुभान अल्लाह, ऊंची बोलो। ये शादी कहाँ हुई है, कौन से एरिया, मक्के शरीफ में कहाँ बारात गई? बेनगर से जल्लोपुर, मजबिट्टा, मुबारकपुर, जीयनपुर, सगड़ी, कहाँ कहाँ बारात जाती है, ठीक है। हुजूर की बारात कहाँ गई थी, जो भी तरीका रहा हो वो सुन लिया। आज के दौर में आप 100-200 बारातियों को लेके जाते हैं दूल्हे के साथ, और फिर दूल्हा दुल्हन को लेके अपने घर वापस आता है। वो दुल्हन फिर मैके से ससुराल आती है, ठीक। लेकिन अरब की तहजीब ये नहीं थी, जब बारात लेके जाए, मिसाल के तौर पर दूल्हा जाएगा तो निकाह के बाद दूल्हा ससुराल में रुक जाएगा, ये वहां का कल्चर था। हुजूर भी ठहर गए अपनी ससुराल में। हुजूर की ससुराल कहाँ थी बता दूं आपको, याद रखिएगा इंशाअल्लाह। जब कभी मक्के शरीफ जाइएगा तो वहां जाइएगा, ठीक है, ठीक। ये जो आप सफा पहाड़ी से मरवा की तरफ जाते हैं, मरवा की तरफ, मरवा पहाड़ी पर जो दरवाजा है उसके करीब में एक पहले गेट था, मैंने देखा था 14 साल पहले, उसको ओल्ड गेट ऑफ मरवा, पुराना बाबे मरवा कहते हैं। वो 10 फीट के फासले पर था, वहां चले जाए। मरवा पहाड़ी से बाहर निकले, बाहर निकले और बाएं तरफ देखिएगा 25-30 फीट के फासले पर कुछ तामीरी इमारतें दौर से गुजर रही हैं, उधर देखिएगा और ठंडी सांस लीजिएगा और दिल से आवाज आने लगे कि ये वही प्लाट है जिस प्लाट में हुजूर की शादी हुई, ये वही जमीन है जहां अम्मी खदीजा का मकान था। अगर सुभान अल्लाह कहने के बाद अगर बता दूं, इसी घर में मखदूमा फातिमा पैदा हुई, जिंदाबाद जिंदाबाद, मखदूमा ज़ैनब और रुक़ैया और कुलसूम पैदा हुई थी, इसी घर में हसन हुसैन की मां पैदा हुई। ये मुबारक हुजूर की ससुराल।
समझ रहे हैं। अब हुजूर की उम्र शरीफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है और फिर 40 साल के वक्त हुजूर को अल्लाह ने हुक्म दिया नबूवत और रिसालत के ऐलान करने का। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी के बाद हुजूर की शहजादियां हुई, ज़ैनब पैदा हुई, रुकैया पैदा हुई, उम्मे कुलसूम पैदा हुई, मखदूमा फातिमा पैदा हुई, हुजूर के एक और शहजादे पैदा हुए। रवायतों में है कि हुजूर के दो बेटे अम्मी खदीजा के शिकम से पैदा हुए। एक शहजादा मारिया कब्तिया के शिकम नूर से जनाब इब्राहीम की सूरत में जो बक्की शरीफ में आराम कर रहे हैं, वल्लाह अलम बिस्सवाब। मेरे आका की दीगर अज़वाज की कोख मुबारका से कोई औलाद नहीं पैदा हुई, बहरहाल बेहतर उलमा किराम जानते हैं। मालूम है क्या हुआ, जैसे हुजूर ने नबूवत का ऐलान किया, अल्लाह की तरफ से ऐलान करना था कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, कुरान हक है और अल्लाह एक है, ये पत्थर के खुदा, ये बुत खुदा नहीं हो सकते, सब झूठी चीजें, फ्रॉड है, ऐ लोगों जन्नत है, जहन्नम है वगैरह वगैरह। दुनिया दुश्मन बन गई हुजूर की। आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ अखबार पढ़ा और आप रोए, वीडियोस देख के फलस्तीन के लोगों की आप चीखे और तड़पे। लेकिन हुजूर के साथ क्या हुआ मालूम है आपको? हुजूर के साथ क्या हुआ? जैसे हुजूर ने यह कहा पत्थरों की बारिश होने लगी, हुजूर को मारा पीटा जाने लगा। मालूम है कैसे? हुजूर जब सजदे में जाते थे, ऊंट की ओजड़ी जो 70, 80, 90, 100 किलो की होती है, ऊंट की ओजड़ी, ओजड़ी जिसमें गंदगी होती है, हुजूर की पीठ पे लोग ला के रख दिया करते, हुजूर की पुश्त मुबारक पे ला के रख देते थे। हुजूर की शहजादियां छोटे छोटे कदमों से भाग के जाके हुजूर की पुश्त से ऊंट की ओजड़ियां हटाते थे और कुफाराने मक्का मजाक करते थे हुजूर की बेटी, हुजूर को देख करके, बुला अपने खुदा को, बुला अपने अल्लाह को। हुजूर सब्र फरमाते थे, कुछ कहते नहीं थे। मालूम है क्या हुआ? आज अगर आपको और मुझे शादी के मौके पर रोटी ठंडी मिल जाती है तो हम नाराज होते हैं, बुरा ना मानना। रोटियां ठंडी मिल जाए तो नाराज होते हैं। अगर डोंगे में गोश्त ना हो ना तो फिर मालूम है क्या हो, उसकी सेल्फी लेके दोस्तों को भेजते हैं, इस कुत्ते के पास खिलाने के लिए था नहीं तो मुझे दावत क्यों दी? मैंने 1000 रुपए के नुकसान किया है, मैंने 2000 का पेट्रोल जलाया है, तब इसकी शादी में आया। हाँ, देख रहे हो डोंगे, देख रहे हो मुझे मिले नहीं, एक बोटी नहीं मिली। लोग इस किस्म की सेल्फी लेते हैं। मैं बताता हूं तुम्हें, सिफत सत्तारी अपने अंदर पैदा करो। अगर कोई कमी देखो तो उसे छुपाओ, अल्लाह तुम्हारे अयूब को छुपाएगा। आप जिस नबी की उम्मत में से हो, उनके साथ क्या हुआ था? कभी ऐसा आपके साथ नहीं हुआ। जो लोग यहाँ पर 50 साल के बैठे वो जानते हैं, बाकी उनके बाद आने वाले कम जानते हैं। पहले के दौर में गांव में कोई जुर्म ज्यादा करता था तो उसका हुक्का पानी बंद होता था, उससे गांव के लोग बात नहीं करते थे, उससे कोई दुकान वाला सौदा नहीं देता था। मालूम है क्या हुआ? यही तरीका हुजूर के साथ अपनाया गया। मक्के में सबसे मुबारक इंसान, सबसे अजीम खानदान में पैदा होने वाले आका करीम रसूलों के सरदार का हुक्का पानी बंद किया गया। हमारे और आपके लिए खेल कूद का सामान नहीं है, लेकिन हुजूर से पूछो, हुजूर के गुलामों से पूछो कितनी मशक्कतें उठानी पड़ी। यह हुक्का पानी बंद कहां किया गया था? हुजूर की पैदाइश की जगह के पीछे एक कुबरी है, एक सुरंग है, उससे अंदर जाएंगे तो अजीजिया है, फिर जाएंगे तो मिना है, फिर मुजदलिफा है, फिर अरफात है, और आगे जाएंगे तो गदीर खुम की वादी है, जहां हुजूर ने अली का हाथ पकड़ के फरमाया था, जिसका मैं मौला उसका अली। वाह वाह, आप यही ठहरे जहां हुजूर पैदा हुए। उसके पीछे एक बड़ी पहाड़ी है, पहाड़ी के नीचे एक वादी है जिसको शेबे अबी तालिब कहा जाता है। अबी तालिब की घाटी मैंने 14 साल पहले नक्शा लेकर के टहल के देखा था, तो उस वक्त वल्लाही अज़ीम एक पिलर पर शेबे अबी तालिब लिखा हुआ। ये वही एरिया है जहां हुजूर का हुक्का पानी बंद किया। कितने दिन तक? 3 दिन तक नहीं, 1 हफ्ते तक नहीं, 3 साल तक हुजूर का हुक्का पानी बंद किया। समझ रहे हैं आप? अगर आप घर में खाना खाने के लिए बैठे और आपको अंडा फ्राई ना मिले ना, सब्जी ना होना, तो 4 साल की बच्ची को तमाचे मार के भगा देता है, बीवी गालियां देते हैं। कभी हुजूर का दस्तरखान भी याद कर लिया, कभी हुजूर की जिंदगी मुबारक का कोई चैप्टर पढ़ लिया करें। आप हुजूर की उम्मत में से हो, फिर हम किससे कहें? आपसे ना कहें। आप बताएं, हम ये बातें किससे करें? आप अगर हमारी इन बातों को नहीं सुनोगे हुजूर की उम्मत में होकर के, तो हम अपनी बातें किससे करेंगे? यहूदियों से करेंगे? इसराइलियों से करेंगे? बताएं आप, हम कहां जाएंगे? हम मुगल सराय स्टेशन पर बैठ के बताएंगे, ऐ लोगों सुनो सुनो, मेरे आका ऐसे थे। तुम नहीं सुनोगे तो कौन सुनेगा? तुम्हारे लिए दास्तानें बनी है, तुम्हारे लिए हुजूर का निजाम बना है। तुम बड़े खुशकिस्मत हो जहां बिल गेट्स को कोई नेमत नहीं मिली, अंबानी को नहीं मिली, वो इस्लाम की नेमत हम जैसे फकीरों को मिली। तुम्हें हुजूर का जिक्र सुनना पड़ेगा, तुम्हें हुजूर का जिक्र गिरा ना गुजरे, लोड ना हो। हमारे पास हुजूर के अलावा और कौन सी पूंजी है, और कौन सी चीज है जो अल्लाह की रजा तक हमें पहुंचा दे? हुजूर की जात है जो हमें आखिरत में कामयाबी की पाकीज़ा सेज अता करेगा। दोस्तों, हुजूर की बातों से उकताहट महसूस ना करो। लोग आते हैं हुजूर की महफिल में,
انہیں بلاؤ. بولے وہ کیا غریبوں کے پاس بیٹھوں گا؟ بولے کیوں؟ بولے ارے فقیر فقرا بیٹھتے ہیں ان کے درمیان بیٹھوں گا، میرا اسٹیٹس ہے. معاذ اللہ رب العالمین. حضور کی باتیں بولا ہے، مولویوں کی داستان ہے، حضور کی باتیں گرا گزرتی ہیں. اللہ اکبر. انہیں پتا نہیں ہے. ایک صاحب خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے، یوں کسی سے بات نہیں کرتے تھے. کسی نے کہا بھائی سنو سنو کیا ہو رہا ہے؟ بولے چپ، مجھے ڈسٹرب نہ کرو. بولے کیوں؟ بولے ابھی حضور یاد آ رہے ہیں. ہائے ابھی میں حضور کو یاد کر رہا ہوں. مجھے دخل مت کرو، ٹچ مت کرو، مجھے حضور یاد آ رہے ہیں. حضور کی یاد کتنے کام کی ہے. ان ماؤں سے پوچھو جن کے بچے پہلے بیمار ہوتے تھے تو ان کی سہیلیاں کہتی تھی اے میری بہن تیرا بچہ بیمار ہے، کسی حکیم کے پاس جا، یعنی ڈاکٹر کے پاس جا. تو وہ عورت کہتی تھی نا 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 مجھے مشورے مت دے بیٹے کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے. بولے پھر ٹھیک کیسے ہوگا؟ بولے 3 دن کے بعد میرے دروازے پر ملا شریف ہونے والے، میں اپنے اس بیمار بچے کو حضور کی محفل میں لے کے جاؤں گی، میرا بچہ حضور کی باتیں سنتے سنتے انشاءاللہ شفا پائے. سبحان اللہ. یار یہ ذکر مصطفیٰ ہے، ایسی ویسی چیز نہیں ہے. خوش قسمت لوگوں کے حصے میں آئی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ انہی خوش قسمت لوگوں میں آپ ہیں. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بول دو اے اللہ تیرا شکر. فخر سے کہا کرو، فخر سے تال ٹھوک کے کہا کرو، خوش ہو کے اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے. عقل اس کی پھر گئی، تقدیر میں نعمت تھی، ابو جہل نہ پڑھ سکا کلمہ. آپ کو یہ نعمت ملی ہے، سب کو نہیں ملتی خدا کی قسم. اس دور کے ہندوستان کے وزیر اعظم کو یہ نعمت نہیں ملی، آپ کو ملی ہے. کہتے کیوں نہیں سبحان اللہ؟ اس اسٹیٹ کے سی ایم کو نعمت نہیں ملی، لیکن یہ دولت عظما، یہ نعمت ہمارا اور آپ جیسے فقیروں کے حصے میں آئی ہے. ہمیں سجدے میں جایا کرو، کہا کرو اے اللہ تیرا شکر ہے، کہا کرو اے اللہ تیرا شکر ہے. بہت بڑی نعمت، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہوتی جسے عشق رسول کہتے ہیں، ایمان کہتے ہیں، جسے قرآن ایمان اسلام کہتے ہیں. معلوم ہے میرے آقا کا حقہ پانی بند کیا گیا، حقہ پانی بند کیا گیا. معلوم ہے چھوٹے کن کن باتوں پہ طلاق ہو رہا ہے؟ صرف شوہر نے کہا تھا پانی لے کے آؤ، بیوی نے سادہ پانی گلاس میں لا کے دے دیا. شوہر نے کھڑے ہو کر کہا مجھے ٹھنڈے پانی کی ضرورت تھی. تو بیوی نے کہا میں نے سوچا کہ آپ سفر سے آ رہے ہو اور موسم کی وجہ سے میں نے آپ کو اس لیے سادہ پانی لا کے دیا. بولتے مجھ سے زبان لڑاتی ہے. بیوی نے کہا زبان لڑانے کی اس نے بات کیا؟ بات بڑھتی چلی گئی، بس اتنی سی بات پر طلاق دے دی بیوی کو. بیس کیا تھا؟ ٹھنڈا پانی نہ پینا. ان باتوں پہ طلاق دیتے ہیں لوگ. اللہ اکبر اللہ اکبر. آئیے بتاتا ہوں کہ حضور کا حقہ پانی بند کیا گیا تو حضور کے ساتھ کیا ہوا، حضور کے غلاموں کے ساتھ کیا ہوا. اگر دل کہے تو اسے کسی کاغذ پہ لکھ لینا اور پھر اس جملے کو موبائل کی اسکرین پر فوٹو لے لینا، اس کو 10-20 دنوں تک اس کی اسکرین پر اسے شو کرنا تاکہ تمہیں یہ بات بار بار دستک دیتی رہے. تاریخ پڑھ کے دیکھیں حضور کا جب حقہ پانی بند کیا گیا تھا، حضور کے غلاموں کو اتنی پریشانی تھی کھانے پینے کی. جو جوتے اور چپل پہن کے وہاں پر قید تھے، ان میں جو چمڑے لگے رہتے تھے، وہ چمڑے وہ چاقو سے کاٹ کاٹ کر کے، چپلوں کے چمڑے کاٹ کاٹ کر کے اسے پانی میں بھگو بھگو کے کھایا کرتے تھے. اس چمڑے کو پانی میں بھگو بھگو کے کھاتے تھے. آج چاول کے بڑے بڑے ٹھیلے شادی کے موقع پر ہمارے جوتوں کے نیچے رہتے. ایک بڑی سی نان شیرمال ایک ٹکڑا کوئی کھا لے تو اس کو اٹھا کر کے یوں نیچے ٹیبل کے نیچے پھینک دیتے ہیں. یہ کس نے کہا؟ یہ طریقہ کس کا ہے؟ حضور کا ایک امبیسڈر اٹلی گیا تھا، جسے آپ روم کہتے تھے پہلے. اٹلی گیا تھا، سامنے اٹلی کا بادشاہ تھا، ودیش منتری حضور کا عاشق گیا تھا. دسترخوان لگا، اس نے کھانا کھایا. جب حضور کے عاشق نے کھانا کھایا تو دسترخوان سمیٹا جا رہا تھا، ایک روٹی کا ٹکڑا زمین پر گر پڑا. حضور کے جو عاشق تھے، حضور کے جو صحابی تھے، غلام تھے، امبیسڈر تھے، ودیش منتری سفیر تھے، وہ آگے گئے اور جا کر کے بیٹھ گئے زمین پر. اس روٹی کے ٹکڑے کو اٹھایا، اسے چوما اور کھا لیا. زمین پر پڑا تھا جہاں لوگ جوتے پہن کے ٹہل رہے تھے، سمجھ رہے ہیں؟ اسے اٹھا کے کھا لیا. جب کھا لیا تو جو میڈیٹر تھا، جو زبان کا ترجمہ بتاتا تھا، اس نے کہا پاگل ہے یہ کیا کرتا تو؟ اٹلی کے لوگ زمین کی روٹیاں اٹھا کے کھانے کو برا مانتے ہیں. گھٹیا انسان، کیسا ہے تو زمین کی روٹی اٹھا کھا لیا. اب بادشاہ دیکھ رہا وہ کیا سوچے گا. تو حضور کے غلام نے کہا چپ، میں ان ظالموں کو دیکھوں کہ مدینے والے آقا کی سنت دیکھوں گا. مجھے تو ڈھنگ عطا کیا ہے آمینہ کے لال نے، مجھے تو پانی پینے کا طریقہ بھی حضور نے بتایا. میں ان ظالموں کو دیکھوں کہ حضور کا کریکٹر دیکھوں، تو مجھے سمجھانے کے لیے آیا. حضور تو اپنی سسرال میں گئے تھے، امی عائشہ کے گھر میں گئے تھے، روٹی پڑی ہوئی تو اسے اٹھا کے کھایا تھا اور فرماتا اے عائشہ یہ جس قوم سے بھاگی ہے پھر کبھی نہیں. اگر ایک گزارش ہے آپ سے، اگر معاشرے کی اصلاح زمین اور آسمان، بڑی بات ہے. میدان محشر میں ایک دن 50,000 سال کے برابر.
5 घंटे भूख लगती है। नाश्ता किया आपने 8 बजे, 12 बजे खाना चाहिए, 12 बजे खाना खाया, रात में 8, 9, 10 बजे खाना चाहिए, 7-8 घंटे भूख लगती है। 50,000 साल के बराबर का एक दिन मैदान महशर का होगा। सोचो कितनी भूख लगेगी। अगर मैं उस दिन आपको भूख ना लगे वो नुस्खा आपको दे दूं तो अमल करोगे? और आप वादा करो कि मेरे लिए भी दुआ करो, मैं भी उस पर अमल करूं इंशाअल्लाह। दिल से बोले इंशाअल्लाह। हुजूर फरमाते हैं दस्तरखान पर जो चावल के दाने गिर जाएं उसे उठा के खा लिया करो। मैदान मैशर के 50,000 साल के बराबर जब एक दिन आएगा उस दिन तुम्हें भूख नहीं लगेगी। सुभान अल्लाह, सुभान ऐसा कर सकते हो? बीमारी तो नहीं होगी, इन्फेक्शन तो नहीं होगा, आपका स्टेटस तो नहीं खराब होगा, आपका लेवल तो नहीं गिर जाएगा। ऐसा है ना, 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 ये गरीब गुरबा फकीर फुकरा के दस्तरखान के मैं उठाऊं? ना ना ना, अपनी भूख मिटाने के लिए अभी से इंतजाम करो। समझ रहे हैं आप? अपनी भूख मिटाने के लिए। मेरे आका के साथ क्या हुआ था, इतनी दुश्वारियों का सामना था। हुजूर की बेटियां रोती थी अपने घर में, अम्मी खदीजा घर से इस उसमें नहीं थी, कैदियों में नहीं थी, वो आजाद थी। हुजूर की बेटियां रोती थी, अम्मी क्या बिगाड़ा है मेरे बाप ने, मेरी सारी सहेलियां अपने बाप के सीने पर सोती हैं, मेरा बाप बिछड़ गया मुझसे, क्यों कैद कर लिया गया मेरे बाप को? अम्मी समझाती थी अपनी बच्चियों को। मखदूमा ज़ैनब और रुक़ैया रोती थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में इंतजार में अबू कब आएंगे, और हुजूर अपनी बीवी खदीजा से कहते थे मेरी मेरी बीवी का ख्याल, मेरे बच्चों का ख्याल रखना, मेरी बच्चियों का ख्याल रखना। ये बच्चियां शादी के बाद अपने घर चली जाती हैं, फिर वहां की जिम्मेदारी होती है। बच्चियां अगर घर में हो तो उनको तकलीफ ना दिया करें, बहनें घर में हो तो उन्हें तकलीफ ना दिया करें। समझ रहे हैं? मेरे आका ने बच्चियों से बड़ी मोहब्बत फरमाई, बड़ी मोहब्बत फरमाई। ये लोड नहीं है, ये लोड नहीं है कि आ गई है तो अब क्या होगा, ना 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 ना, ये लोड नहीं बनती है। बच्चियां बड़ी प्यारी होती हैं। इमाम अब्दुल्ला याफई ने फरमाया था ये बात, ज्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं होगी, खत्म हो जाएगी, लेकिन ये बात याद आ गई। इमाम अब्दुल्ला याफई फरमाते हैं एक साहब की 4 बेटियां थी, जब 5वीं मरतबे बीवी उम्मीद से हुई तो उसने कहा सुन, 4 बेटियां हो चुकी तेरे कोख से, अब अगर बेटी पैदा हुई तुझे तलाक दे दूंगा। वो लड़की रोने लगी, बोले ना, इसमें मेरा कसूर क्या है और इसमें गलती क्या है? अल्लाह की तरफ से बेटियां आ रही हैं। बोले कोख तेरी है, यही कसूर है, ये पेट तेरा है, इसमें से डिलीवरी बच्ची क्यों होती है, बच्चा क्यों नहीं पैदा होता तेरे इस कारखाने शिकम से? उसने कहा ये रब की मर्जी है। और अगर सुभान अल्लाह कहने के बाद अगर बता दूं, मालूम है मेरी भी 2 बेटियां हैं, 2 बेटे, मैंने बेटियों की दुआ गौस पाक की जाली पकड़ के मांगी थी। मैंने कहा हुजूर मुझे अल्लाह से कह के बेटी अता फरमा दे। मुझे 2 किरदार करबला का बहुत रास आता, एक मखदूमा ज़ैनब का, एक मखदूमा सुकैना का। मैंने कहा सरकार एक बेटी अता फरमाए, अल्लाह से कह के, हुजूर से कह के, अल्लाह देने वाला है, मुझे मीठी एक बेटी मिल जाए ताकि मेरे घर में बार बार सकीना के नाम की बरकत। अल्लाह का शुक्र है कि फिर मेरी बेटी पैदा, मैंने उसका नाम वही रखा जो उस सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा मखदूमा सानिया ज़हरा मखदूमा ज़ैनब के साथ पूरे सफर करबला में, कूफा और दमिश्क में, मदीना में साथ में थी। अल्लाह उनके नाम का नूर अता फरमा दे। अगर बेटियां ना हो तो आप ये मन्नत मानो, ऐ अल्लाह अगर बेटी हुई तो सुकैना और फातिमा और ज़ैनब के नाम पर उसका नाम रखेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो औलाद होगी इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो जरूर होगी। और इनसे दुआ करते रहे, आप ना उम्मीद हो, नर्वस ना हो। मालूम है क्या हुआ? इमाम याफई फरमाते हैं जो मेरे भाई बच्चियों की तरफ से गाफिल है, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, बाकी जो मोहब्बत करते हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इन बातों को उनसे बताएं जो मोहब्बत कम करते हैं। इसीलिए आपको बुलाया गया। आपके पास घर था लेकिन आपको यहाँ क्यों बुलाया गया? बेड था, सोफे थे, गद्दे थे, कंबल थे, तरक्की की सारी चीजें थी, लेकिन आपको यहाँ क्यों बुलाया गया? यही नेमत देने के लिए, इसी नेमत को फैलाने के लिए। चिराग से चिराग जले, रोज जलसा करो अपने घर में, 10 रुपए ज्यादा लेके चाय खाने पे चले जाओ, ये सोच के कि आज मैं किसी को चाय पिला के पीऊंगा और उससे रात वाली हुजूर की बातें बताऊंगा। समझ रहे? इंशाअल्लाह बोलो, वरना कहां जलसों में जाओगे, कहां पता नहीं बातें समझ में आए कि ना आए, और रोज कहां मिलेंगे ऐसे मुबारक चेहरों वाले लोग। इमाम याफई फरमाते 4 बेटियां थी, और जब 5वीं मरतबे बीबी के पेट में बच्ची उम्मीद हुई ना, सुन अब अगर बेटी पैदा तो तलाक दे दूंगा। वो लड़की कहां से, ऐ मेरे मौला तू आबरू बचा ले। अपने शोहर के साथ वो लड़की कहती है मैं सफर पे थी और काफिला रुका, तंबू का नाम लगा के एक जगह कयाम किया, तो करीब में पहाड़ी थी, डिलीवरी का दर्द हुआ। मेरी माँ बहन भी सुने, डिलीवरी का दर्द हुआ। मैं समझ गई कि बच्ची की विलादत का वक्त आ गया, पैदाइश होगी। लेकिन अगर यहाँ कम खेमे में बच्ची औलाद हुई और अगर वो बच्ची निकली तो दिक्कत हो जाएगी। लिहाजा उसने बहाने से उस पहाड़ के ऊपर चली गई, उसमें गुफा थी, गुफा उसके अंदर दाखिल हुई। वो कहती है उस
गुफा के अंदर मैंने बच्चे को जना। जब वो बच्चा बाहर आया तो देखा तो वो बेटी थी, फिर बेटी थी। मेरा दिल टूट गया। मैंने कहा मेरे मौला, मैंने तुझसे बेटी नहीं बेटा मांगा था, बकिया तेरी मर्जी है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा था, ऐ मेरे मौला, जब तू किसी बंदे से खुश होता है तो क्या करता है? अल्लाह फरमाता है उसके यहाँ मेहमान भेज देता। उसी ने सुभान अल्लाह कहा जिसको मेहमानों के आने पर खुशी होती है। सुभान अल्लाह। बकिया लोग तो पीछे के दरवाजे से निकल जाते हैं, ये दरवाजा बंद करके बोलते हैं, कह दो बेटे अब्बू घर पर नहीं है। अगर कबूलियत का वक्त रहा तो अब्बू घर पे रहेंगे भी नहीं। बच्चों को झूठ बोलने का आदि मत बनाओ। मेहमान आ गया है, समझ लो कि उसके आने से पहले दस्तरखान की नेमतें पहले मुझे मिल गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे मौला, अगर तू किसी बंदे से खुश होता है तो उसे जाहिर कैसे करता है? अल्लाह फरमाता है उसके हम मेहमान भेजता हूँ। अब देखना है दूसरे सवाल के जवाब पर कितने लोग सुभान अल्लाह कहेंगे। अच्छा ऐ मेरे मौला, जब तू किसी बंदे से बहुत ज्यादा खुश होता है तो उसे कैसे जाहिर करता है? तो मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, अल्लाह ने फरमाया मूसा सुन, जब मैं किसी बंदे से बहुत ज्यादा खुश होता हूँ तो उसके यहाँ बेटियां पैदा करता हूँ। वाह वाह वाह, सुभान बेटियां हैं। आप मोहब्बत करते हैं तो जरा फिर से कह दें सुभान अल्लाह। तुम्हारी बेटियों के कदम में बरकतें अता फरमाए, उन्हें जन्नती रिश्ते अता फरमाए, गरीबों के लिए भी अल्लाह बेहतर रिश्ते अता फरमाए, गैर मुस्लिमों के घरों की बच्चियों के लिए भी अल्लाह बेहतर रिश्ते अता फरमाए, उनको सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता। आमीन कह दो। अब जब बच्ची पैदा हुई तो रोने लगी। एक तो डिलीवरी का दर्द, तकलीफ, बहुत तकलीफ होती है। जिस माँ को आपने जूते की नोक पे रखा है उस माँ से पूछो तेरी पसलियां कितनी टूटी थी मेरी पैदाइश पर, तो मुस्कुरा के बोलेगी ना ना, ये किसने कहा था, तू पैदा हुआ था तो मुस्कुराते हुए। अपने दर्द को छुपा के बोलेगी ये किसने कहा था। साइंस से पूछो पढ़े लिखे लोग, पूरी दुनिया में आजमगढ़ का सिक्का चलता है, भले ही कुछ लोगों की नजर में दागदार हो, लेकिन हकीकत में इस आजमगढ़ ने बड़ी बड़ी कदावर शख्सियतें दी है। पढ़े लिखे लोग मेरे सामने बैठे हैं जबकि इनको मेरे सर पे बैठना चाहिए। मेरे दिल में आप इस वक्त हैं। पूछो साइंस से एक औरत की डिलीवरी में औरत को तकलीफ कितनी होती है, तो साइंस का कई कौल है, एक कौल सुने। साइंस कहती है एक औरत की डिलीवरी में जो दर्द होता है माओ को, वो दर्द अगर 70 मर्दों को बांट दिया जाए तो हो सकता है ये 70 मर्द मर भी सकते हैं। जिस माँ को आपने जूते की नोक पे रखा है, जिसने आपकी डिलीवरी में दर्द को फूल करके मुस्कुराई है, वही माँ दिल में बिठाने के लायक थी, पलकों में बिठा लेती। समझ रहे, जिसको आपने नफरत से बुढ़िया बुढ़िया कह के देखा है, वही माँ तेरी दुआ को अल्लाह की बारगाह तक पहुंचाती। अल्लाह अकबर। बड़ी तकलीफ हुई, भूल गई गम। उसने कहा मेरे मौला ये बेटी अब करती क्या? अब उसने सोचा अगर इस बच्ची को लेके मैं जाऊंगी तो इसकी लाइफ खराब, तलाक देगा मेरा शोहर, तो मेरी खराब, मेरे शोहर की खराब, 3-4 बच्चियां, 7 जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी अगर ये बच्ची मेरे साथ गई तो। बोले फिर क्या करें, फिर क्या करें? मालूम है क्या किया? बोले फिर क्या करें? उसने फैसला किया इस बच्ची को यहीं छोड़ देंगे। ऐ मेरे मौला मैंने इसे छोड़ दिया, अगर ये मर गई तो एक लाइफ खराब होगी, 6 तो बच जाएगी। क्या करूं मेरे मौला, घर बचाना है, मेरी मजबूरी है। उसने उस बच्ची को उसी गुफा में छोड़ दिया। इमाम अब्दुल्ला याफई ने अपनी किताब में लिखा है, जब छोड़ के नीचे उतरी तो शौहर ने कहा ये बता तेरे पेट में जो उभार था वो क्या हो गया? उसने कहा वो बच्चा था, खून बन के खराब हो गया। बोले कोई बात नहीं, ठीक है, 4 बच्चियां काफी है। सफर में उसी कंडीशन में औरत कहती मैं चल पड़ी। 4 महीने के बाद वो काफिला पलटा, फिर वहीं पर आके खेमा जर हुआ, तंबू कनात लगा के रुक गया। जब रुक गया ना, औरत कहती जब मैंने उस पहाड़ी को देखा तो मुझे मेरी बेटी याद आ गई, उस गुफा की वो कैफियत याद आ गई। मैंने अपने शोहर से कहा कि मुझे किसी बहाने से ऊपर जाना, लोटे पानी वगैरह वगैरह। उसने कहा कि मैं उस पहाड़ी पे जाना चाहती थी, देखो मैं अपनी बेटी की कैफियत। जब मैं पहाड़ी पे चढ़ रही थी तो मेरे पैर बोझल महसूस, उठ नहीं रहे थे। मैं सोच रही थी, रो रही थी, मेरी बेटी जिस गुफा में तड़पी होगी तो उसके पैरों के निशान होंगे, जिस जानवर ने मेरी बच्ची को खाया होगा तो हो सकता है कि कुछ हड्डियां जो सख्त होंगी वो पड़ी होगी, और यह भी हो सकता है कि मेरी बच्ची के खून के छींटे दीवारों पर लगे होंगे। वही देख के तसल्ली कर लूंगी। मजबूरी थी, मेरी बच्ची मुझे माफ ना करेगी मैदान महशर में। मैंने उसे दूध न पिलाया, अपना पिस्तान उसे मैं नहीं दिया। मैं ये सोचते हुए ऊपर रोते हुए गई, जैसे मैं ऊपर पहुंची मैंने क्या देखा? कोई है जो इस जुमले को, आगे वाले जुमले को सुन के सुभान अल्लाह कह देगा? वो औरत कहती है जब मैंने ऊपर गई गुफे में झांक करके मैंने देखा तो मैंने क्या देखा? एक हिरनी लेटी हुई है
और मेरी 4 महीने की बच्ची हिरनी का दूध पी रही है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहते क्यों नहीं, वही तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है। मेरा मेरा खुदा है, मेरा खुदा। हम झूठ क्यों बोलते हैं? बच्चों को पालना है। आप मुझसे पूछते हो आसिफ भाई आप रिश्वत के पैसे, दलाली के पैसे क्यों? यार जाओ अपना काम करो, मजबूरी यार, घर बहुत लोड बहुत ज्यादा है भाई। बच्चों को पालना है तो झूठ बोलना पड़ेगा ना, हराम खाना पड़ेगा। अरे ना 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 मेरे भाई, तू क्या पालेगा बच्चों को? ये तो हमारे एतकाद में शामिल है। वही तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है। मेरा खुदा है, मेरा। हम क्या पाल पाएंगे? हम तो अपने बच्चों को जो माँ के पेट में थे हम पाले थे। अगर हम पालते तो क्या होता बता दूं आपसे। ये बच्चा एक दिन भी न ठहर पाता अपनी माँ के पेट में, खून का लोथड़ा बन के माँ के पेट से बाहर आता। अल्लाह ने पाला तो कैसे पाला? बकौल सूफी सुल्तान, माँ खाती थी अपने हिसाब से। जब मैं और आप अपनी माँ के पेट में थे, बच्चा माँ के पेट में थे, फरमाते सूफी साहब किबला जब माँ खाती थी अपने हिसाब से, लेकिन अल्लाह बच्चे को देता था बच्चे के हिसाब से। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर माँ के हिसाब से बच्चे को मिला होता तो बच्चा खून का लोथड़ा बन के जमीन पे बैठ गया। लेकिन माँ ने खाया अपने हिसाब से, अल्लाह ने बच्चे को दिया बच्चे के। सुभान अल्लाह। 8, 9, 10 mm की पथरी से माँ तड़पती है, बाप तड़पता है, बेटा भाई बहनें बच्चे तड़पते हैं, पूरा खानदान रोता है तड़प देख करके। लेकिन 2-2, 2.5 किलो का हसीन बच्चा माँ के पेट में मुस्कुराता है। उसी की कुदरत के जलवे। कहते क्यों नहीं वही तो है जो निजाम मेरा खुदा है। आप क्या पालोगे और हम क्या पालेंगे? झूठ बोलते हैं लोग, हम पालते हैं इसलिए हराम। अपने बच्चों को तो हराम नहीं खिलाएंगे तो पैसे नहीं, इनकम नहीं, माज़अल्लाह ये गलत तरीका है। कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। हम तो एक चूंटी को भी नहीं पालते। सूफी साहब फरमाते हैं वो चूंटियां जो तुम्हारे पैरों के नीचे से वो चलती हैं अंदर आते हुए, बड़े तुर्रम खाओ तो कह दो चूंटियों से, ए चूंटी रुक रुक, जाना नहीं आगे, जाना नहीं, वरना जूता देख मसल। तो चूंटी मालूम क्या बोलती है? तू मुझे अपने जूते से मसल तो सकता है, लेकिन मैं रुकूंगी उसी की मर्जी से जिसने मुझे चलने की तौफीक अता की। हमारी ये 2 कौड़ी की औकात है। चूंटी भी हम अपने अंडर में नहीं ले सकते। मोबाइल 1 लाख रुपए के हाथ में है तो कभी अमेज़न का जंगल देखें आप, उस जंगल में लाखों किस्म के कीड़े मकोड़े देखें आप, फिर गौर करें आप मोबाइल रखें, सोचें आप, ये गौर व फिक्र करना इस्लाम का हिस्सा। सोचें इन कीड़े मकोड़ों को कौन खाना खिलाता था, कौन इनका खाने का विभाग संभालता है, तो पता चलेगा वही तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है। मेरा खुदा है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा मेरे मौला ये जो जमीन पर ये मखलूक है इतनी ज्यादा, इन्हें पालता कैसे है तू? फरमाया सुन मूसा, सुन सुलेमान। वो तालाब किनारे बैठ गए। बोले अब मेरी कुदरत के जलवे देखो अपने रब की कुदरत के जलवे। अब बैठ के देखने लगे। अचानक एक चूंटी आ गई, उसके मुंह में चावल का दाना था। वो चूंटी इधर से उधर राउंड लेती, चावल का दाना उसके मुंह में था, राउंड लेती रही। थोड़ी देर के बाद तालाब से एक मेढक निकला ना, तो वो चूंटी के करीब आया। चूंटी आगे बढ़ी, उसके पैर पे चढ़ के उसके मुंह के पास गई। मेढक ने मुंह खोला, चूंटी मुंह के अंदर, मेढक ने मुंह बंद किया और तालाब में डुबकी लगाई खाए। सुलेमान अलैहिस्सलाम बैठे हुए हैं, देखें कुदरत के जलवे कैसे हैं। थोड़ी देर के बाद वो मेढक बाहर आया तो उसने मुंह खोला तो चूंटी बाहर निकली। अब वो चावल का दाना गायब था। चूंटी निकली, पैरों पे उतर करके सीधे वो बिल में सुराख में चली गई। सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते मैंने शुक्र के सजदे किए। मैंने कहा मेरे मौला ये क्या तरीका है, ये चूंटी, चावल का दाना, ये मेढक के मुंह में जाना वगैरह वगैरह, फिर आना, मुंह खोलना, चूंटी का जिंदा सलामत, फिर वगैरह वगैरह। अल्लाह फरमाता है कि इसी तालाब के बिल्कुल बीचों बीच में एक टापू है, जजीरा है, उभरी हुई मिट्टी है ना, जजीरा समझते हैं, जजीरा टापू। बोले उसी जजीरे पर, उसी टापू पर एक अंधा कीड़ा मैंने पैदा किया। देखना कितने ऐसे लोग हैं जो सुभान अल्लाह कहते हैं। अल्लाह फरमाता मैंने उस जजीरे पर एक अंधा कीड़ा पैदा किया है। अंधा कीड़ा अपना खाना पीना ढूंढ नहीं सकता, उस तक खाना पहुंचाने के लिए मैंने इस चूंटी को पैदा किया, इस मेढक को पैदा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा कहते क्यों नहीं हाथों को उठा के, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है। बोलो तेरा शुक्र है, ऐ अल्लाह तेरा फख्र से बोलो, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र। वही तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है। मेरा खुदा है। सुभान अल्लाह। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। या कायनात की परवरिश अल्लाह के। आप और हमारा ये कहना गलत है, दलाली के पैसे नहीं लूंगा तो घर कैसे चलेगा? घर कौन चलाएगा? हम वही चलाएंगे। मालूम है जब उस बच्ची ने देखा, औरत ने ओ बाप, तड़प गई, अरे मेरी बेटी जिंदा है, और तड़प करके बर्दाश्त न कर सकी, नीचे दौड़ती हुई आई। जब नीचे दौड़ती हुई आई ना, मालूम है क्या हुआ?
पूरे काफिले के लोग आ गए, बोले क्या हुआ क्या हुआ? उसका शौहर भी आ गया, बोले क्या बात है, मेरी बीवी चिल्लाती क्यों है? उसने कहा सुनो सुनो, वो 4 महीना पहले तुमसे झूठ बोला था, मेरे पेट का बच्चा पानी बन के खून बन के बह गया है। बोले फिर? बोले वो पैदा हुआ। आके चल देख कुदरत की कारनामे, उसके जलवे देख अल्लाह के। पूरा काफिला भागा, उसकी बेटी उसके बच्चे सब भागे ऊपर। जब सब ऊपर गए तो सबने क्या देखा, हिरनी लेटी हुई है, 4 महीने की गुड़िया, किसी बिग बाजार का कोई लिबास उसके बदन पे नहीं है, गर्दो गुबार से अटी हुई गुड़िया, वो बच्ची 4 महीने की, उसके हाथ पांव सब, उसका जिस्म सलामत है, हिरनी का दूध पी के जिंदा है। काफिले के लोग दंग रह गए, उस औरत का शौहर भी दंग रह गया। लोगों ने पेशानी अपने हाथ में मारी, अजीब बात है, अब तक ये बच्ची जिंदा है। खुदा की बारगाह से आवाज आई, अगर सुभान अल्लाह कह सकते हो तो सुभान अल्लाह कह, अपनी आवाज को बुलंद करना चाहो तो कर सकते हो। आवाज आई, ऐ मेरे बंदो सुनो, अगर मैं पैदा करना जानता हूं तो इन्हें पालना भी जानता हूं। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान। वही तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है। मेरा सुभान अल्लाह, मेरा खुदा वही तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है। मेरा खुदा है, सुभान अल्लाह। मेरे आका 3 साल तक थे, अल्लाह ने हिफाजत फरमाई। 3 साल के बाद हुजूर का हुक्का पानी जो समाजी बाइकाट वो खत्म हुआ। वक्त भी ज्यादा हो रहा है, माफी चाहता हूँ और बातें खत्म है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बड़े जुल्म के पहाड़ तोड़े गए। आपको सिर्फ अखबार पढ़ करके नमाज छोड़ने का शौक पैदा हो गया। अब क्या होगा? सिर्फ आप अखबारें पढ़ लेते हैं, यूट्यूब मोबाइल में देखते हैं तो फिर आपका दिल टूट, अब क्या होगा? मेरे बाल बच्चों क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। आप सिर्फ 2 काम करें, अपने बच्चों को सच बोलने की तरकीब से